Alrighty, guys, let's begin. So, we start with the cartels today. Now, before we get started, let me just first of all tell you what exactly we are going to do in the next coming 1.5 or 2 hours. I don't know exactly how much time it's going to take. Approximately 90 minutes to 100 minutes. I think this is the time that this should be taking. Now, this topic, of course, we in the previous session we discussed Section 3.3 provides for the horizontal agreements, which are really considered as draconian and heinous in India. These are considered as heinous crimes. So now we begin with the cartels, and when we talk about the cartels, what are we exactly going to see? Number one, the definition of cartels. Second, the concept per se. What exactly is the meaning of the cartel? Thirdly, we will check out the Indian context. Of course, we will see in the introduction the meaning, the concept, but we shall also see the what are import cartels, what are export cartels, whether they are regulated by the Indian Competition Act or not. This is also we are going to check out. The most important and for the record, I again the most important thing in Competition Act is that you understand the case laws. If you don't understand the case laws, it's not that you will not be able to solve things, but if you don't understand the case laws, this concept, the entire Competition Act, you will not understand. So once we are done with the international cartels, we will check out the case law. So we are going to check out a case of 11 cement companies. They were penalized 6,700 crores, including one cement manufacturing association. So 6,700 crore penalty was levied by Honorable Competition Commission of India. And lastly, but again, very important, if the question gets asked in the examination, what is the exact way we are going to write down the answer? What is the exact method of writing the answer? That is what we will check out. So we will also see the structure of the answer. How do we write things? What is the exact way of writing down things? How do we fetch the maximum score? Okay, so that is what is on the agenda. That is what is on the platter today. So let's get started. सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं कार्टल्स एग्जैक्टली होते क्या हैं. ठीक है, आ जाओ. Let's begin with now what exactly are the cartels. हम लोग cartels की अंडरस्टैंडिंग में जा रहे हैं. जब मैंने आपको बोल दिया है कि हम लोग आंसर एग्जैक्टली कैसे लिखना है ये सेशन के एंड में देखने ही वाले हैं, तो अभी आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ किस में होना चाहिए? कॉन्सेप्ट्स. एग्जैक्टली आंसर कैसे लिखना है, आई विल कम टू दैट, एंड ट्रस्ट मी, इट इज गोइंग टू बी a cakewalk for all of you. But yes, I must tell you something, that you should be focusing on the concepts. So, सबसे पहले तो जब भी कार्टल्स की क्लास शुरू होती है, मैं पहला क्वेश्चन ये पूछता हूँ कि पहले डेफिनेशन पढ़ाऊँ, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँ, या केस लॉ पढ़ाऊँ, इंडस्ट्री में क्या हुआ है वो पढ़ाऊँ, हिंदुस्तान में क्या हुआ है वो पढ़ाऊँ. तो मेजॉरिटी ऑफ द किड्स इन द क्लास जो एकदम ना सीधे साधे बेचारे बहुत ही मासूम बच्चे रहते होते हैं, सर पहले डेफिनेशन पढ़ा दो. और जब मेजॉरिटी क्राउड यूजुअली शाउट्स कि सर केस लॉ, इंडस्ट्री, एंड देन देयर आर सम पीपल हु अंडरस्टैंड मी, दे वुड से कि सर जैसा आपको ठीक लगे, जो आपको लगता है बेस्ट है. सो टेकिंग द लिबर्टी ऑफ doing things as per my will, and trust me guys, you have chosen me in economic laws. I will not be disappointing you all. You will have great time. Now, let me just talk about the case which happened in India. Let me just explain you the entire stuff in India. Actually, there's a 258 pages judgment, which basically I'm going to tell you in the summary format. I don't mind opening the case law, but reading 258 pages here, I know for the fact it's not going to be possible, because it's way too time consuming. But what I have done is I have really taken the core summary, the core stuff from that particular part, including what has happened after the judgment, what has eventually, what all things have happened. I've taken care of it, don't worry. So let me just first of all talk about cartels. Now सबसे पहली बात तो ये कि आपको पिछले सेशन में ये तो समझ आ गया होगा कि फंडामेंटली कार्टल्स का मतलब होता है ऐसे एग्रीमेंट्स जो सिमिलर टाइप की कंपनीज के बीच हो. फॉर एग्जाम्पल, मान लो ICICI बैंक, एक्सिस बैंक,
SBI, HDFC बैंक, HDFC बैंक लिखना जरूरी है क्योंकि HDFC becomes that's a different entity. It's a housing finance entity, housing finance company. You are aware about it. Let's take one more bank. Let's take Dena Bank. तो सबसे पहले तो हम लोगों ने कार्टल्स की जब बात की थी या जब सेक्शन 3 की हमने हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट्स की बात की थी, तो फंडामेंटल बात, बहुत बेसिक लेवल की बात यह है कि यार जब सिमिलर धंधा करने वाले कॉम्पिटिटर्स आपस में मिल जाएं, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, ये सारी की सारी एंटिटीज जो आपके सामने है, ये सारी की सारी बैंक्स हैं। अगर ये सारी की सारी एंटिटीज मिलकर ये तय कर दें कि यार इंटरेस्ट ना अपन लोग जब अपने यहाँ पे डिपॉजिट करेंगे ना, हम उनको 2% इंटरेस्ट देंगे, बहुत हुआ ये 3.5%, बहुत हुआ 4%, अब ये नहीं चलेगा। मान लीजिए अगर सारी बैंक्स हिंदुस्तान के डिपॉजिटर्स के खिलाफ, ये तो कॉन्स्पिरेसी है एक प्रकार की, आप तो सारे डिपॉजिटर्स के खिलाफ जा रहे हो क्योंकि आप सबने मिलकर क्या किया, जानबूझ के जो लोगों को ब्याज 3.5-4% मिल रहा है इंडस्ट्री में, कोटक महिंद्रा तो 5-6% भी दे रहा है, आप लोगों ने क्या किया, आपने कॉन्स्पायर किया, आपस में डिसाइड किया कि हम लोग सब अगर डिपॉजिट रेट घटा देंगे तो हिंदुस्तान के जो भी कंज्यूमर्स बैंक में एफडी वगैरह करवाते हैं वो सब लोग ज्यादा बहस नहीं करेंगे क्योंकि हर बैंक का डिपॉजिट रेट कम हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, सभी बैंक्स ने मिलके खिलवाड़ किया इकोनॉमी के साथ। यहाँ सब बैंक्स ने मिलके उपभोक्ताओं के खिलाफ एक साजिश की, दिस इज अ कॉन्स्पिरेसी, है ना, ये तो एक प्रकार की कॉन्स्पिरेसी हुई। जानबूझ के जो पॉसिबल है आप वो एफिशिएंसीज जो हो सकता है वो संभावनाएं आपने हटा दी। टेक्निकली सारी बैंक्स अगर एक दूसरे से कॉम्पीट करें, सारी बैंक्स अगर कंज्यूमर्स को अपना बनाने की कोशिश करें, तो नेचुरली उनका फोकस होना चाहिए कि हम मैक्स टू मैक्स हमारी एफिशिएंसीज कैसे इंक्रीज करें। वो लोग अपने सिस्टम्स पे काम करेंगे, वो लोग अपने नेटवर्क्स पे काम करेंगे, वो लोग अपनी सर्विस पे काम करेंगे, 1,500 चीजों में उनको बिजनेस की एफिशिएंसीज को इंक्रीज करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन उन्होंने तो आसान रास्ता चुन लिया। उन्होंने क्या किया, जब दोस्त बन के काम हो सकता तो दुश्मनी क्यों करना, हाथ मिला लेते हैं। पब्लिक को लगे अपन लड़ रहे हैं लेकिन एक्चुअल में हम साथ साथ हैं। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर बैंक्स आपस में मिलके ये तय कर लें कि हम लोग डिपॉजिट में ब्याज दरें कम देंगे लोगों को, तो ये तो हुआ क्या, एग्जैक्टली हुआ क्या, यहां पर कुछ कॉम्पिटिटर्स साथ आ गए। ये कॉम्पिटिटर्स ने आपस में मिलके अपना एक गठजोड़ बना दिया कि यार मिलके धंधा कर सकते हैं, ब्रिटानिया हो गया ये तो, मिल बांट के खाएंगे, मिल बांट के खेलेंगे। सिमिलरली मान लीजिए अगर इंडिगो, जेट एयरवेज का नाम भी लिखना चाहिए कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, इंडिगो, गो एयरवेज और एयर एशिया फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये तीनों कंपनियों ने तय कर लिया कि बॉस कुछ भी हो जाए, आज के बाद हम बेस टिकट्स, चाहे कोई भी सिटी से कोई भी सिटी जाना हो, अगर हमें रेट कम भी पड़ता होगा, यार एक काम करते हैं यार, पूरी इंडस्ट्री की प्रॉफिटेबिलिटी बनानी है अपने को, 5,000 रुपए बेस टिकट। तो अगर हिंदुस्तान की ये 3 एयरलाइन कंपनीज आपस में मिल जाएं और ऐसा डिसाइड कर लें कि हम लोग बेस टिकट के प्राइजेस इंक्रीज करके 5,000 कर देंगे, 7,000 कर देंगे, 10,000 कर देंगे, तो हिंदुस्तान में तो ट्रैवल करना महंगा हो जाएगा। सिर्फ मेरी और आपकी बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में जितने भी ट्रैवलर्स हैं, जितने भी लोगों को इंपॉर्टेंट काम से भी जाना होगा, मीटिंग्स के लिए भी जाना होगा, तो इट विल बिकम कॉस्टली। या तो मान लो हिंदुस्तान के स्टील मैन्युफैक्चरर्स, कम ऑन गिव मी सम नेम ऑफ स्टील कंपनीज, आई होप यू आर अवेयर अबाउट लॉट ऑफ कंपनीज इन इंडिया, कम ऑन। सो मान लीजिए टाटा स्टील, JSW स्टील, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, मान लो ये हिंदुस्तान की तीनों सरिया बनाने वाली कंपनीज ने, अगर ये तीनों कंपनीज ने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद हम लोग स्टील का दाम, तीनों ने मिलकर क्या किया, एक साथ हिंदुस्तान में तय कर लिया ये कि आज के बाद हिंदुस्तान में स्टील का भाव 25% ऊपर हो जाएगा, बढ़ा रहे हैं लोग प्राइसेस। अगर कॉम्पिटिटर्स आपस में मिलके भाव तय कर ले कि अब से हम
स्टील आज अगर 100 में बिक रहा था 125 में बेचेंगे। तो ये तो पब्लिक के खिलाफ आप कॉन्स्पिरेसी कर रहे हो, हिंदुस्तान की पब्लिक को लूटा जा रहा है ये तो, है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स they are acting in collusion. Competitors, there is some meeting of mind. Please try and understand, please try and absorb the language that I'm trying to speak. मैं बोल रहा हूं कि मीटिंग ऑफ माइंड्स है, जरूरी नहीं है कि वो लोग फॉर्मल अग्रीमेंट करेंगे। मैंने आपको अग्रीमेंट की डेफिनेशन के वक्त भी बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अग्रीमेंट की डेफिनेशन, कंपटीशन एक्ट में अग्रीमेंट की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। कंपटीशन एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि अग्रीमेंट नीड नॉट बी फॉर्मल, अग्रीमेंट नीड नॉट बी इन राइटिंग, अग्रीमेंट नीड नॉट बी इन्फोर्शिएबल बाय लॉ। जरूरी है ही नहीं कि फॉर्मली किया गया हो। मैं कह रहा हूं कि अगर कहीं ना कहीं उनके there is some meeting of mind, there's a very important term which is used in competition law. competition law में एक शब्द है meeting of minds. जरूरी थोड़ी ना कि वो लोग लिख कर करें। अगर there is a meeting of mind, हम सब ने कोड लैंग्वेज में भी बात किया, हम लोग अगर स्टील मैन्युफैक्चरर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर्स बैठे हुए हैं 3 कंपनी के, अगर हम तीनों ने डिसाइड किया कि यार क्या शर्मा जी, स्टील इंडस्ट्री में मुनाफा ही नहीं हो रहा यार, मार्जिन ही नहीं बच रहे, कम से कम 25% मार्जिन ज्यादा होना चाहिए। मान लो अगर सिर्फ इतनी बात हुई और बाकी 2 मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने ऐसा नॉट भी कर लिया या स्माइल भी करके उठे और उस मीटिंग के बाद भाव 25% ऊपर चले गए, दैट वुड इंप्लाई कि इनके बीच एक कोल्यूजन है, इनके बीच एक गठबंधन है, इनके बीच एक गठजोड़ है। कहीं ना कहीं ये लोग मिल के ऑपरेट कर रहे हैं। जो कॉम्पिटिटर्स को एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना चाहिए, जो कॉम्पिटिटर्स को एक दूसरे के साथ हार्ड कोर कंपटीशन करना चाहिए और इनोवेशन करना चाहिए, अपने नए प्रोडक्ट्स बनाना चाहिए, कंज्यूमर्स के लिए भाव घटाना चाहिए, इनोवेट करना चाहिए, कंज्यूमर्स के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाना चाहिए, उनने क्या किया, उन्होंने कहा भाड़ में गए कंज्यूमर, लेट्स प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा तो खेल खत्म। बिल्कुल वैसे ही मेरे भाइयों, अगर हिंदुस्तान की सभी सीमेंट कंपनीज, अंबुजा, एसीसी, बंगाल सीमेंट, व्हाटएवर नो, मान लो हिंदुस्तान की सारी कंपनीज, क्या नाम है चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के ओनर का, कम ऑन, इंडिया सीमेंट्स, मान लो हिंदुस्तान की ये सारी, सबसे बड़ी हिंदुस्तान में सीमेंट कंपनी कौन सी, कम ऑन, अल्ट्राटेक, एक जमाने में ग्रासिम, बिरला ग्रुप की ही कंपनी है ग्रासिम सीमेंट्स, उन लोगों ने लार्सन एंड टूब्रो की यूनिट खरीदी थी अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट आज भी हिंदुस्तान की लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरर है और सेकंड ग्रासिम आ जाती है। अब तो खैर इन दोनों का मर्जर भी हो गया है। एनीवे, व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर हिंदुस्तान की ये सारी सीमेंट कंपनीज ने, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, बंगाल सीमेंट, फॉर दैट मैटर इंडिया सीमेंट्स, अल्ट्राटेक सीमेंट्स, एक फ्रेंच कंपनी उसका नाम है लेफार्ज ग्रुप, इनफैक्ट एसीसी अंबुजा, इनकी भी जो प्रमोटर्स हैं दे आर होलसेम सीमेंट्स, जो कि स्विट्जरलैंड की कंपनी है। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ऐसी 11 सीमेंट कंपनियों ने आपस में मिलके एक अग्रीमेंट तय कर लिया, अगर हिंदुस्तान की सभी सीमेंट कंपनी जिनको एक दूसरे के साथ कॉम्पीट करना चाहिए, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि हिंदुस्तान की ऐसी बहुत सारी सीमेंट कंपनीज ने कोल्यूजन कर दिया, जानबूझ के ऐसी टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर लिया जिसकी वजह से सीमेंट के दाम कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए और सीमेंट इंडस्ट्री में कोई भी कंपटीशन आपस में बचा नहीं। मगर मैं आपको ये बोलूं कि हिंदुस्तान के सारे सीमेंट कंपनीज, अलग अलग सीमेंट कंपनीज एक दूसरे के साथ गठबंधन बना के, एक दूसरे के साथ एक कार्टेल बना के ऑपरेट कर रहे थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्री में कंटिन्यूसली सीमेंट के दाम बढ़ते जा रहे थे। टू अ ग्रेट एक्सटेंट ये भी एक प्रकार का एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ कॉम्पिटिटर्स एक साथ कोलूड कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स दे हैव सम मीटिंग ऑफ माइंड, कॉम्पिटिटर्स एक साथ आ गए और सबने मिलकर अगर चीजों के दाम बढ़ाना शुरू कर दिया तो ऐसा ही हुआ था गाइस। देयर वाज अ केस जहां ये, और हिंदुस्तान में कई समय से सीमेंट कार्टेल की बात चल रही थी। हिंदुस्तान में कई सालों से ऐसा माना जाता था कि जितनी भी सीमेंट कंपनीज है वो सब मिल बांट के हिंदुस्तान में काम कर रही है, मिल बांट के हिंदुस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। इंडस्ट्री में जितनी भी सीमेंट कंपनीज है उनके ऑपरेटिंग मार्जिन देखने से भी समझ में आता था कि कहीं ना कहीं ये लोग मिलके काम कर रहे हैं। लुक एट द कंपनीज, लुक एट द नेम ऑफ द कंपनीज, एसीसी सीमेंट, अंबुजा, अल्ट्राटेक सीमेंट, जेपी एसोसिएट्स की जयप्रकाश एसोसिएट्स, बिनानी सीमेंट, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, इंडिया सीमेंट्स, जेके सीमेंट्स, लाफार्ज विच आई टॉक्ड अबाउट,
रैमको, श्री सीमेंट, एंड ऑफ कोर्स उन्होंने एक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाया था जिसका नाम था सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन. व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर मैं आपको बोलूं कि हिंदुस्तान में इसी तरह से 11 सीमेंट कंपनीज ने, यहाँ तो आई हैव नॉट रिटन ऑल द नेम्स, बट अगर मैं आपको ये बोलूं कि हिंदुस्तान में 11 सीमेंट कंपनीज आपस में मिलकर जानबूझ के कुछ ऐसी टैक्टिक्स को डिप्लॉय करती थी जिसकी वजह से हिंदुस्तान में सीमेंट के दाम बढ़ते थे, कैसा लगेगा क्लास आपको? दीज, एक तो इनका एक एसोसिएशन बना हुआ था, उसका नाम था सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन. अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसी 11 कंपनीज आपस में कोल्यूड करके, आपस में मिलके जानबूझ के सीमेंट के भाव को ऊपर लेके जाती थी, तो आपको कैसा लगेगा? लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस केस बिफोर we get into the definition, before I talk about the concept, before we get into anything else. Let me just first of all tell you how in India things are operating. India में कैसे काम होता है, किस तरह से काम होता है. तो let me just try and explain you the case law here. आ जाओ. So what was the exact case? Let's just write down. Trust me guys, it's important that you understand what was happening in the industry because these are among the first few cases which happened in India. और जब ये पेनल्टीज लगाई गई तो हिंदुस्तान के सारे कॉर्पोरेट्स को पता चल गया था कि भैया अब हिंदुस्तान में नया कंपटीशन लॉ आ चुका है और अब if they will not behave or if they will not comply with the Competition Act 2002, the cost of non-compliance is going to be very, very, very high. And this case actually it marked, the arrival of Honorable CCI. After the judgments, the corporates, बड़े बड़े corporates ने अपने अपने companies में legal counsels appoint करना start किया. In fact, जैसे financial audits होते हैं तो उसमें जो internal auditors appoint किए जाते हैं ताकि पहले से हम लोग सब check करके रखें, बिल्कुल उसी तरह बड़ी बड़ी entities ने अपने यहाँ पर competition compliance programs run करना शुरू कर दिए थे. तो let's check out the case law. और case law कैसे लिखते हैं ये भी आज आपको मेरे साथ समझेगा. तो सबसे पहली बात तो ये कि देयर इज अ लैंग्वेज दैट हैज टू बी यूज्ड हियर. सबसे पहले तो हम उसकी बात करते हैं. तो सबसे पहले तो मुझे बताओ, हिंदुस्तान में कंपटीशन से रिलेटेड, कंपटीशन लॉ से रिलेटेड कुछ भी होगा तो मैटर कहाँ जाना चाहिए? कम ऑन, इजी वन. ऑनरेबल, कम ऑन गाइस, कम ऑन. ऑनरेबल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. तो सबसे पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान में जो नोडल बॉडी है जो कंपटीशन को रेगुलेट करती है वो है ऑनरेबल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि दिल्ली में है. दिल्ली में इनकी बेंच है. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सबसे पहली बात तो ये कि हिंदुस्तान में जब भी कोई कंपटीशन लॉ से रिलेटेड मैटर होता है, इट इज एक्चुअली रेगुलेटेड बाय ऑनरेबल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. तो किसी भी पार्टी को कोई भी तकलीफ होती है तो वो केस कहाँ जाता है? ऑनरेबल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. ठीक है. तो सबसे पहले तो हुआ क्या था, किस्सा क्या था, फैक्ट्स क्या थे यार. फैक्ट्स बताने के लिए ना मुझे थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा. नाउ 2008, देखो हिंदुस्तान में 2007 तक, अगर आपको मैं 2007 की बात बताऊं, हिंदुस्तान में बिल्कुल ऐसा ही माहौल था जैसा आज आप देख रहे हैं. सेंसेक्स 50,000 चले गया. 2007 वही साल है जिसमें सेंसेक्स 8,000 से 21,000 पे पीक कर गया था. उस समय 21,000 मतलब पीपल वेंट क्रेजी. केक काटे जा रहे थे. अभी 50,000 पे भी केक काटा हमने वैसे, लेकिन उस समय 21,000 पीक पे आ गया था. इकोनॉमी बूम पे थी. मतलब 2007 दिसंबर तक इकोनॉमी, मतलब हिंदुस्तान का बोलो शेयर बाजार ऊपर की तरफ फट चुके थे, बहुत ऊपर चले गए थे मार्केट्स. उस समय मनमोहन सिंह की सरकार होती थी, उस समय कांग्रेस की सरकार होती थी और इसी तरह का हाल था. जीडीपी 8-8%, 9-9% ग्रो कर रहा था, 8.5%, 8%, 7%. और 2008 जनवरी में पता चला कि यूएसए की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बैंक्स, गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली, लीमन ब्रदर्स, सभी लोगों ने बैंक्रप्सी की एप्लीकेशंस फाइल कर दी थी. ये सारी बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स कंगली हो गई थी, बैंकरप्ट हो गई थी. और कपल्ड विथ व्हाट हैपेंड इन इंडिया, 25 जनवरी 2008 को हिंदुस्तान में सत्यम का स्कैंडल हो गया.
ना सत्यम स्कैंडल मतलब इट वॉज अ 7-8 thousand करोड़ स्कैम, उस समय का 7-8 हजार करोड़ मतलब आज का कम से कम 50,000 करोड़। उतना बड़ा स्कैम हुआ, मार्केट केम डाउन क्रेजी, बाजार वापस, मतलब ये जो था भाई, ये तो 2004-5 से 8,000, 2004-5-6 से लेके 8,000 से 21 आया था, वापस मार्केट क्रैश हो गई, मार्केट वापस सेंसेक्स 7,000 हो गया। ना व्हाट हैपेंड, उस समय जब मार्केट क्रैश हुई उसके बाद में, और पूरी ग्लोबल मेल्टडाउन था यार। हिंदुस्तान तो ठीक है, अमेरिका तो बर्बाद हो गया था, अमेरिका में सब प्राइम क्राइसिस आया था, वहाँ तो रियल एस्टेट का दाम घट गया था, एक एक $100 के अपार्टमेंट्स मिलना शुरू हो गए थे, इतना हालत खराब था। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, तो फंडामेंटली ये जो 2 साल थे, 2000 इनफैक्ट 2009, 10, 10, 11, ये तो रिकवरी का टाइम था। इनफैक्ट मैं 8-9 को भी ले लेता हूँ। इनफैक्ट दिस इज वट एवर आई एम स्पीकिंग इज पार्ट ऑफ द जजमेंट, ओके। ये मेरी कोई मनोरमा कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब जो हकीकत में हुआ था मैं वही उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। 8-9, तो फंडामेंटली ये जो 2-3 साल थे ये तो बहुत ही रिसेशन से रिलेटेड वाले साल थे, और ग्लोबल मेल्टडाउन था, कहीं ना कहीं पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी भसकी थी टू अ ग्रेट एक्सटेंट। इंडस्ट्री ग्रोथ भी उस समय थी नहीं, ठीक है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में ग्लोबली भी कहीं पे भी कोई इकोनॉमिक रिकवरी नहीं था, कहीं पे भी, मतलब सब जगह प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थे। 2009 में देखो, इलेक्शन भी हुए थे हिंदुस्तान में, वापस से कांग्रेस सरकार भी चुन के आई थी। मैं कंटेक्स्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप उस थोड़ा टाइम ट्रैवल कर सके। हाँ, आज अभी 2021 में 2020 में बैठ के उस जमाने को समझना जरूरी है ना, इसीलिए मैं आपको उस टाइम जोन में लिखने जा रहा हूँ। जो मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक मेमोरी क्रिएट करेगी। एनीवे, अब 2008, 9, 9, 10, 10, 11 ये तो मेल्टडाउन था। हिंदुस्तान में जितनी भी कोर सेक्टर्स थी, कोर इंडस्ट्रीज थी, सबकी जो ग्रोथ थी वो ज्यादा, वो पॉजिटिव ग्रोथ नहीं थी, नेगेटिव थी। मतलब कोई भी हिंदुस्तान में सेक्टर ऐसा नहीं था जहां ग्रोथ अच्छी थी, जहां पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई थी। तो हर जगह नेगेटिव ग्रोथ रिकॉर्डेड थी, हर जगह ग्रोथ नहीं थी। अब व्हाट आई एम सेइंग इज, भाई हिंदुस्तान में किसी भी सेक्टर में कोई भी ग्रोथ नहीं थी। हिंदुस्तान में जितनी भी इंडस्ट्री इंडस्ट्री थी, कोर इंडस्ट्रीज होती है, अलग अलग टाइप के जो सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग क्षेत्र, सब जगह नेगेटिव ग्रोथ थी। अब नेचुरल सी बात है, अगर सब जगह नेगेटिव ग्रोथ थी तो आप बताइए, हिंदुस्तान में सीमेंट की खपत, सबसे ज्यादा सीमेंट की खपत कहाँ है? रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, ये सेक्टर्स भी ग्रोथ नेगेटिव थी, यहां पर भी कोई डिमांड नहीं था, यहां पे भी प्रॉब्लम्स थी। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्पाइट हिंदुस्तान की सभी इंडस्ट्री की नेगेटिव ग्रोथ थी, हिंदुस्तान में सभी कोर सेक्टर्स का नेगेटिव ग्रोथ है, कहीं कोई डिमांड नहीं है, कहीं कुछ हो नहीं रहा है, बावजूद उसके सीमेंट का प्राइस, सीमेंट का भाव कंटिन्यूसली ऊपर जाता जा रहा था। जब ये सीमेंट का भाव, ये सारे फैक्टर्स की वजह से, तो इकोनॉमिक सेंस क्या बोलता है, सीमेंट का भी भाव नेगेटिव, या तो नॉर्मल रहना चाहिए या तो कम होना चाहिए। तो सारी इंडस्ट्री नेगेटिव ग्रोथ में है। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, भैया सीमेंट का सबसे ज्यादा जहां खपत होगा, जहां डिमांड होगा, अगर वही इंडस्ट्री बैठी हुई है तो सीमेंट का दाम कैसे बढ़ सकता है, सीमेंट की डिमांड कैसे बढ़ सकती है? तो यही हुआ गाइस उस टाइम पे। सीमेंट का प्राइस जहां बढ़ना नहीं चाहिए था, जहां नॉर्मल भी कम जाना चाहिए था, इतने सारे नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद सीमेंट के प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ते गए, और वो भी छोटा मोटा इंक्रीज नहीं था, अच्छा खासा इंक्रीज था सीमेंट प्राइसेस में। और जब ये आभास हुआ तो हिंदुस्तान के बिल्डर्स परेशान हो गए, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर में भसकी हुई थी रियल एस्टेट सेक्टर उस टाइम पे। अब जब हिंदुस्तान का रियल एस्टेट सेक्टर भसका हुआ था, जब हिंदुस्तान का रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी भसका हुआ था, सभी बिल्डर परेशान कि साला जब डिमांड नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो सीमेंट का भाव कैसे ऊपर जा रहा है। और उसी वक्त हिंदुस्तान का जो बिल्डर्स एसोसिएशन है, हिंदुस्तान के जो सभी बिल्डर्स हैं, उन लोगों का जो बिल्डर्स एसोसिएशन है, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्राइजेस कंटिन्यूसली
बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्योंकि सीमेंट के एक बढ़ते प्राइसेस से परेशान थी, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस बात पे नोटिस डाला और एक्चुअल में बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ क्या फाइल कर दी? इट वाज दे हु एक्चुअली फाइल्ड व्हाट? क्या फाइल करते हैं क्लास? कंप्लेन। तो मेरे सामने बोलना नहीं कंप्लेन फाइल की, कंप्लेन फाइल की, कंप्लेन शब्द ही गलत है। दे फाइल व्हाट? इंफॉर्मेशन। दे एक्चुअली फाइल्ड द इंफॉर्मेशन विथ ऑनरेबल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके खिलाफ थी ये इंफॉर्मेशन? किसके खिलाफ ये जानकारी दी गई थी? हिंदुस्तान की सीमेंट कंपनीज के खिलाफ। मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, कम ऑन। हिंदुस्तान की ये जो सीमेंट कंपनीज थी ये उनके खिलाफ इंफॉर्मेशन थी। उन लोगों ने जो गलत प्रैक्टिस हिंदुस्तान की इंडस्ट्री में चलाई थी उन्हीं लोगों के खिलाफ ये कंप्लेन आई थी। तो कंप्लेन आई थी सीमेंट कंपनीज और साथ ही साथ सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, उसको सीएमए भी बोलते हैं इंडस्ट्री में, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। सो ये 11 सीमेंट कंपनीज और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के खिलाफ कंप्लेन आई। तो मैं जो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा उस बात पे आप लोग ज़्यादा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले तो मेरे को बताओ कि किसने कंप्लेन फाइल की? कम ऑन, अरे बोलो भाई बोलो, कम ऑन। सो कंप्लेन की इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन किसने फाइल की? बोलो जल्दी बोलो। इंफॉर्मेशन फाइल करने वाली पार्टी का नाम बोलो। किसने फाइल की? बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने। यस और नो? तो अगर इंफॉर्मेशन फाइल करने वाले ये हैं तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये हैं इन्फॉर्मेंट्स? सो प्लीज अंडरस्टैंड इट इज द बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो कि था इन्फॉर्मेंट। इन्हीं लोगों ने ऑनरेबल कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ इंफॉर्मेशन फाइल की थी। किसके खिलाफ फाइल की थी? किसके खिलाफ फाइल की थी क्लास? कम ऑन। ये किसके, विच वॉज द पार्टी विच वॉज एलिज्ड? किसके खिलाफ ये कंप्लेन आई थी? जल्दी बोलो गाइस, कम ऑन यार, डू नॉट डिसअपॉइंट मी ऑन दिस। सो द इंफॉर्मेशन वॉज फाइल्ड अगेंस्ट द सीमेंट कंपनीज एंड द सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। अगर कंप्लेन इनके खिलाफ आई थी तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि दीज आर द ऑपोजिट पार्टीज? इनको हम क्या बोलते हैं क्लास? ऑपोजिट पार्टीज। फिर पार्टी 1 को OP1, पार्टी 2 को OP2, OP3, OP4, OP5, ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो दीज वर द ऑपोजिट पार्टीज। दिस इज एग्जैक्टली द language that is usually used in the industry. Now kids don't use it, but yes, people who are aware about the industry, they will tell you that this is the appropriate language to use and this is how you can score in the subject as well. Anyway, so please understand, Informant Builders Association of India किसके खिलाफ कंप्लेन की गई थी? 11 सीमेंट कंपनीज और सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के खिलाफ। फिर मैं बोल रहा हूँ, कंप्लेन गलत शब्द है, इंफॉर्मेशन फाइल की गई थी। ठीक है, कंपटीशन लॉ में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन एडजुडिकेटर को देते हैं, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन कमीशन को देते हैं, और बाकी फैक्ट फाइंडिंग एनालिसिस, तहकीकात करना, इन्वेस्टिगेशन करना, ये किसका काम? CCI का काम। नाउ तो नेचुरली इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि सर ठीक है इंफॉर्मेशन तो फाइल की गई थी, लेकिन सर व्हाट वर द एलिगेशंस, है ना भाई? अगर मैंने इंफॉर्मेशन फाइल की है तो ऑपोजिट पार्टीज के ऊपर में क्या आरोप लगाए गए थे? तो इंफॉर्मेशन जब फाइल की गई तो क्या आरोप क्या लगे? आरोप, because fundamentally we will have to see what are the allegations. If we are not aware about the allegations, how will we analyze the case law? तो allegations क्या थे? Allegation, I hope you understand what is the meaning of allegation. आरोप क्या लगाए गए थे? So सबसे पहला आरोप क्लास, look at what was happening in the industry. मैं exact जो आपको facts बता रहा हूँ, this is the substractum of the 258 pages order which was passed by Honorable CCI. In fact,
one of the member of honorable commission who passed the order, he himself has taught us about the case. So yes, I'm glad and I feel lucky. What are the allegations? Allegation number one, हिंदुस्तान में सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जो सारी सीमेंट कंपनियों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया है, सबसे पहला आरोप था, सबसे खतरनाक आरोप ये था कि जब जब सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की मीटिंग होती थी, जब जब ये हिंदुस्तान की सारी सीमेंट कंपनीज आपस में मीटिंग करती थी, आफ्टर द मीटिंग्स सीमेंट के प्राइजेस ऊपर चले जाते थे. क्या अजीब बात है गाइस, कम ऑन. जैसे जैसे सीमेंट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन की मीटिंग होती थी, आफ्टर द मीटिंग्स द प्राइजेस ऑफ सीमेंट पर बैग केप्ट ऑन इंक्रीजिंग. तो हिंदुस्तान में एक कंपनी नॉर्थ में है, एक साउथ में, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक सेंट्रल इंडिया में अगर सीमेंट की कंपनी है, तो सभी सीमेंट कंपनियों के भाव एक साथ कैसे बढ़ रहे हैं, है ना. ठीक है भाई, प्रोडक्शन की वजह से, ऑपरेशंस की वजह से हो सकता है दाम ऊपर नीचे करने पड़े, प्राइस बढ़ाना इज नॉट अ प्रॉब्लम. मिल के डिसाइड करना और एक जैसे एक ही टाइम पे एक ही डेट पे प्राइसेस बढ़ाना, दिस इज द कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द पब्लिक. ये तो आप पब्लिक, हिंदुस्तान की आप इकोनॉमी में बर्बाद कर दोगे. आप इकोनॉमी को, आप तो लूट रहे हो पब्लिक को. आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलता हूं? देख भाई, मान लो मध्य प्रदेश में लाइमस्टोन, जो सीमेंट मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, मान लो अगर रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ गया था और फिर मैंने दाम बढ़ाए, दैट्स एक्सेप्टेबल. बट मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग रीजन्स में मैन्युफैक्चरिंग होने वाली, जो मैन्युफैक्चर करने वाली सीमेंट कंपनीज है, सबके दाम एक साथ कैसे बढ़े हुए? चल माना उत्तर प्रदेश में लेबर की शॉर्टेज थी, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में लेबर की शॉर्टेज थी. मेरे भाई, पूरे हिंदुस्तान में उसी टाइम पे लेबर की शॉर्टेज थोड़ी हुई होगी. पूरे हिंदुस्तान में हर जगह पे रॉ मटेरियल की एक साथ प्रॉब्लम थोड़ी होगी. प्रोडक्शन के बहुत सारे फैक्टर्स हैं. अगर कोई, अच्छा, इनमें से एक कंपनी एकदम छोटी कंपनी है, एक कंपनी एकदम बड़ी कंपनी है, तो उनकी कॉस्ट पर यूनिट या कॉस्ट पर बैग सेम कैसे हो सकती है? तो ये सोचने वाली बात थी कि जब जब सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की मीटिंग होती थी, आफ्टर दैट सीमेंट के भाव बढ़ जाते थे. दूसरा आरोप जो इन पे लगाया गया था वो ये था, और ये बहुत गंभीर आरोप था, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. दे वर डेलिबरेटली, ये सारी सीमेंट कंपनीज जानबूझ के, these cement companies, they were deliberately reduced the production. जानबूझ के सीमेंट का प्रोडक्शन घटाया जा रहा था. deliberately the cement production was getting, they were controlling it. भाई, अगर मैं ऐसा अगर हम सारी सीमेंट कंपनी मिलके ऐसा तय कर ले कि यार हम ना, हमारी फैक्ट्री में 100 टन सीमेंट बन सकती है, लेकिन हम बनाएंगे ही नहीं, हम बनाएंगे 70%, 60%. हम क्या करेंगे? जानबूझ के सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग कम करेंगे, जानबूझ के सीमेंट का प्रोडक्शन कम होगा. इससे होगा क्या? which resulted in artificial scarcity. हिंदुस्तान में ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट की गई सीमेंट की, एंड विच इवेंचुअली, कम ऑन गाइज, क्या ही होगा? विच इवेंचुअली रिजल्टेड in increased prices of cement. These were the allegations. Come on guys, who was the informant? The Builders Association of India. Where was the information filed? It was filed before the commission, Honorable CCI. Against whom? Against the cement companies and the cement manufacturers association. What are the allegations? Number one, after the cement manufacturers association meeting, after the CMA's meeting, wherein all the cement companies, their directors, their officers used to meet, after their meetings the prices go up and they deliberately reduced the production of cement. जानबूझ के सीमेंट का प्रोडक्शन घटा दिया गया, जिसकी वजह से मार्केट में सीमेंट की आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाएगी. और द वेरी नेचर ऑफ स्कैर्सिटी इज, अगर आप कोई चीज की कमी हो जाएगी तो उसके दाम बढ़ जाएंगे. सिंपल लोग इकोनॉमिक्स से ही निकला है ना कॉन्सेप्ट. फर्दर इट
because of the artificial scarcity which got created due to the deliberate reduced production, the prices went up. और ये प्राइजेस ऊपर जाने की वजह से कहीं ना कहीं दाम हिंदुस्तान में बढ़ गए, कहीं ना कहीं ये प्राइजेस ऊपर जाने की वजह से सीमेंट के दाम इंक्रीज हो गए। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी की वजह से पूरे हिंदुस्तान में सीमेंट के प्राइजेस बढ़ते गए। एंड दिस वाज हैपनिंग डिस्पाइट द इंक्रीज्ड डिमांड इन सीमेंट। ना हिंदुस्तान में रियल एस्टेट सेक्टर में बूम था, ना रियल एस्टेट सेक्टर में डिमांड थी, ना कंस्ट्रक्शन में डिमांड थी। ये सारे नेगेटिव फैक्टर्स के बावजूद सीमेंट के दाम कंटिन्यूसली कैसे बढ़ते चले गए? तो होना नहीं चाहिए था। व्हाट आई एम सेइंग इज this was the case, this was the scenario, and this was the information which was filed before the Honorable Competition Commission of India. Now, naturally, when the matter went with CCI, जब CCI ने इस पे इन्वेस्टिगेशन की, अब हम तो इन्वेस्टिगेशन का भी तरीका पढ़ने वाले हैं। आई विल टॉक अबाउट दैट कि वहाँ डायरेक्टर जनरल का कैसे रोल आता है, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट। बट येस, टू अ ग्रेट एक्सटेंट अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो एक्चुअल में सीसीआई को ये समझ आया कि यस इंडीड द प्रोडक्शन वाज रिड्यूस्ड। ये सारी की सारी सीमेंट कंपनीज ने जानबूझ के अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी कंट्रोल कर रखी थी। जानबूझ के वो लोग अपनी सीमेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी को कंट्रोल कर रहे थे, प्रोडक्शन को रिड्यूस कर रहे थे, ताकि सीमेंट के प्राइजेस ऊपर चले जाएं, ताकि हिंदुस्तान में सीमेंट के भाव ऊपर चले जाएं। और जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से हिंदुस्तान में सीमेंट की प्राइस बढ़ते चले जाएंगे। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये भी पता चला कि ये असंभव है कि ये सारी कंपनीज जो हिंदुस्तान के अलग अलग पार्ट्स में सिचुएटेड हैं, जो अलग अलग स्केल्स पे ऑपरेट करती हैं, ये असंभव है कि बिना इनके तालमेल के, बिना इनके कोल्यूजन के सबके दाम इक्वल आए। सेकेंड मॉड्यूल के बच्चे ना अक्सर बोलते हैं कि सर कॉस्टिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कॉस्टिंग बोर लग रहा है। एज अ सब्जेक्ट मुझे भी बोर लगता था, लेकिन भाई जब मैं एक्चुअल में इंडस्ट्री में आया, जब मैंने कंपटीशन लॉ में थोड़ा और गंभीरता से सोचना शुरू किया, तब साला पता चला कि कॉस्टिंग का बहुत बड़ा खेल है। तो होता क्या है क्लास, अब ये सारी सीमेंट कंपनी, कोई छोटी कंपनी कोई बड़ी कंपनी, अभी छोटी कंपनी जो है इकोनॉमीज पे ऑपरेट नहीं कर रही, बड़ी कंपनी जो है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल पे ऑपरेट कर रही है। मतलब उसका जो फिक्स कॉस्ट है पर सीमेंट बैग कम हो जाता है, जिसकी वजह से बड़ी कंपनी को सीमेंट सस्ते में बनना चाहिए, थोड़ा छोटी कंपनी का थोड़ा प्राइस ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जब सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया तो पता चला कि यार लाइमस्टोन जो रॉ मटेरियल होता है सीमेंट का, उसके दाम बड़े नहीं थे। तो देयर वाज नो रीजन व्हाई द सीमेंट प्राइसेस केप्ट ऑन इंक्रीजिंग। उल्टा सरकार ने फ्लाई ऐश, आप आई एम नॉट वेरी श्योर आप जानते हैं कि नहीं, बट जो कोयला होता है वो जलने के बाद जो उसकी ऐश बच जाती है, उसका भी इस्तेमाल सीमेंट में उसको भी यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल में सीमेंट का दाम उसकी वजह से 20% 10% कम होना चाहिए। तो डिस्पाइट ऑफ द गवर्नमेंट अलाउइंग यूजिंग फ्लाई ऐश इन द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, सीमेंट में फ्लाई ऐश को मिलाना अलाउ कर दिया था, तो टेक्निकली तो सीमेंट का दाम 10% और कम होना चाहिए था। इंडस्ट्री में डिमांड नहीं था, तो भाव बढ़ने की तो सवाल ही पैदा नहीं होती। तो ये असंभव है कि ये इतनी हिंदुस्तान की इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां आपस में मिलके सभी का दाम एक साथ बढ़ता था और सबका इक्वल रेट से बढ़ता था। तो सीमेंट कंपनीज के ऊपर जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये तो पक्का पता चला कि इन्होंने जानबूझ के सीमेंट को रिड्यूस किया है। और हाँ, ये भी बात सच निकली कि सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की जब भी मीटिंग होती थी, इनकी मीटिंग के बाद प्राइजेस हमेशा ऊपर जाते थे। द सीमेंट प्राइजेस ऑलवेज वेंट अप। जब इनकी मीटिंग्स हुई तब सीमेंट कंपनी के प्राइजेस ऊपर जाते देखे गए, तब सीमेंट कंपनीज के प्राइस जो थे वो ऊपर गए थे। अब मैं फिर से बोलता हूँ कि नेचुरली अगर आप कोई गलत धंधा करोगे तो आप लिखित अग्रीमेंट तो करोगे नहीं ना, आपस में कोई फॉर्मल अग्रीमेंट तो नहीं करेगा चलो हिंदुस्तान की पब्लिक को मिल के लूटेंगे, तो कोई अग्रीमेंट तो करेगा नहीं। तो नेचुरली कोई लिखित अग्रीमेंट नहीं था, लेकिन ये जो थी ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस थी कि भैया जब सीमेंट कंपनी की मीटिंग होती है, जब सारी सीमेंट कंपनियां, सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जब भी
मीटिंग बुलाता था, इनकी मीटिंग के बाद में दाम बढ़ जाते थे। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था। मैंने आपको पहले भी बताया था यार, हम वो हिंदी पिक्चरें देखते थे ना, ये कानून सबूत मांगता है, कानून सबूत मांगता है। भाई यहाँ पे हम सबूत नहीं मांगते। आई हैव टोल्ड यू बिफोर, द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ हियर इज प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज। इसका मतलब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे भी हम लोग ऑर्डर्स पास कर सकते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस पे भी हम लोग पेनल्टीज लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है यहाँ पर मेरे पास बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मेरे कहने का मतलब पक्का सबूत होगा तो ही पेनल्टी विल फॉलो। चक्कर ये है क्लास कि जब सीसीआई ने इन्वेस्टिगेशन किया, पता चला कि जानबूझ के वाकई में सीमेंट का प्रोडक्शन कंट्रोल किया गया था, जानबूझ के सीमेंट के प्रोडक्शन को घटाया गया था। हर सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के बाद में सीमेंट प्राइसेस पर बैग बढ़ जाते थे। इनफैक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात, अब देख यार, कहीं ना कहीं यूएस, ईयू मतलब यूरोप, ये जो जूरिस ये जो ये जो जूरिसडिक्शंस है, यहाँ पर कंपटीशन लॉ ऑलरेडी इवॉल्व्ड है। हिंदुस्तान तो लेट एंट्रेंट है, हिंदुस्तान में कंपटीशन लॉ भी इवॉल्व ही हो रहा है। तो यूरोप की कंपनी है, फ्रांस की कंपनी है लेफेर्ज ग्रुप। लेफेर्ज ग्रुप की सब्सिडरी हिंदुस्तान में जो ऑपरेट करती है, जब वो हिंदुस्तान में आए थे तो उन्होंने सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ज्वाइन करते वक्त ये बोला था कि हमें लगता है कि जो सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन है, जिस तरह से वो हिंदुस्तान में काम करता है, उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें ऐसा डर लगता था कि वो शायद एंटी कॉम्पिटिटिव है। कहीं ना कहीं उन्हें यह भी लगता था कि उन्हें यूरोप में कंपटीशन लॉ में कहीं पेनल्टी ना भरनी पड़ जाए। तो ये भी एक काफ़ी एविडेंस रिकॉर्ड पे ली गई थी। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखो आप, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं हिंदुस्तान की ऐसी सीमेंट कंपनियों जो 1 लाख करोड़ रुपए का सीमेंट बेचती है और दूसरी कंपनी है जो 5,000 करोड़ की सीमेंट बेचती है, दोनों का कॉस्ट पर बैग सेम कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। जो साउथ में काम करती है कंपनी, जो नॉर्थ में या सेंटर में काम करती है, वो दोनों की रॉ मटेरियल की कॉस्ट अलग है, लेबर की कॉस्ट अलग है, ऑपरेशनल कॉस्ट अलग है। तो सभी के कॉस्ट अलग अलग होंगे, तो एग्जैक्टली सेम टाइम पे बढ़ना, वो भी एग्जैक्टली 5 रुपए से या 15 रुपए पर बैग से एक साथ दाम बढ़ना असंभव है। अगर ये सारी कंपनियां मिलकर ऑपरेट नहीं कर रही होती तो इनका दाम एक साथ नहीं बढ़ सकता था। इवेंचुअली after all the things, I must tell you, eventually the honorable, see, just give me a moment please, I'll just utilize the space please. So eventually guys, what happened, eventually the CCI, after it did all its investigation, yes, the penalty followed. हिंदुस्तान में इन सीमेंट कंपनीज को सीसीआई ने पेनल्टी लगा दी थी, एंड द पेनल्टी वाज आल्सो ड्रेकोनियन। 6,700 करोड़ रुपए की पेनल्टी वाज लेवाइड बाय द ऑनरेबल कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, एंड दीज 11 कंपनीज अलॉन्ग विद द सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इनको 6,700 करोड़ की पेनल्टी हुई थी। ठीक है सर, वाई द पेनल्टीज आर सो ड्रेकोनियन इन नेचर? इतनी ज्यादा पेनल्टी क्या जरूरत पड़ गई थी सर? पेनल्टी की जरूरत ज्यादा इसलिए थी क्योंकि ये जो सीमेंट कंपनियों ने किया उसकी वजह से हिंदुस्तान में असर पड़ेगा। सीमेंट का रोड महंगा बनेगा, हिंदुस्तान की दुकानें, वेयरहाउस, मॉल, सड़कें, फैक्ट्रियां, सबका कंस्ट्रक्शन महंगा, एफोर्डेबल हाउस महंगा हो जाएगा। सरकार कब से बोल रही है हिंदुस्तान में हर आदमी के पास घर हो, एफोर्डेबल हाउस बनेंगे तो वो बनाना महंगा हो जाएगा, वेयर हाउस महंगा तो चीज़ों को रखना महंगा, चीज़ों को रखना महंगा तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। हिंदुस्तान में जितनी भी आर्टिकल्स है जो सब गोडाउन में रखने पड़ते हैं, सबका प्राइसेस ऊपर गया। सब्जियों का दाम हो गया, वेजिटेबल्स का दाम हो गया, ये ऊपर चले जाएगा। ऐसी जो भी सब्जी होगी, जो भी फ्रूट होगा, जो जैसे एप्पल है वो शिमला और दिल्ली से बाय रोड आते हैं, जितनी भी चीज़ें बाय रोड आती होगी सबका दाम बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि रोड बनाना महंगा हुआ तो रोड में टोल टैक्स ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा आप लोग को टैक्स लगेगा तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगी तो चीज़ों की कॉस्ट बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट करने के बाद जहाँ वेयर हाउस में रखना पड़ेगा वो भी कंस्ट्रक्शन महंगा हो चुका है। तो कंस्ट्रक्शन महंगा होगा तो जब बिल्डिंग को बनाना महंगा, खरीदना महंगा, अगर रेंट पे चाहिए होगी तो रेंट ज़्यादा। इस वजह से ये जो सीमेंट कंपनियों ने किया उसका इम्पैक्ट पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे भी पड़ा, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति पे इसका इम्पैक्ट पड़ा। तो प्रॉब्लम क्या है, कंपटीशन लॉ में ऐसा कोई भी अगर अग्रीमेंट है जो एंटी कॉम्पिटिटिव है, ऐसा कोई भी अग्रीमेंट जो एंटी कॉम्पिटिटिव है, अगर इस तरह के अग्रीमेंट्स किए गए तो नुकसान सिर्फ एक पार्टी को नहीं होता है, पूरे
देश में प्रॉब्लम होती है और इसी वजह से पेनल्टीज बहुत ज्यादा लगाई जाती है. ओके, नाउ आई होप. अच्छा, आपको ये समझा क्या केस कैसे लिखते हैं, किस तरह से इसको याद करना थोड़ा थोड़ा. लेट मी नाउ टेक यू टू द डेफिनेशन. अब देखो, अब सही समय आ गया है कि अब मैं तुम्हें डेफिनेशन में भी लेके जाऊं. अब तुम डेफिनेशन में आओगे तो तुमको अब समझ में आएगा कि डेफिनेशन एग्जैक्टली ऐसी क्यों है. तो सबसे पहले तो वेयर इज द डेफिनेशन. अभी कार्टल्स सी से ही शुरू होता है, डेफिनेशन भी दी हुई है 2C में. लेट्स चेक आउट द डेफिनेशन ऑफ कार्टल्स. सेक्शन 2C कार्टल्स को डिफाइन करता है. लेट मी टेक यू टू द नोट्स नाउ. आ जाओ, मैं आपको 2 मिनट के लिए नोट्स में लेके आता हूं. सेक्शन 2C Competition Act, Section 2C, cartel includes, so it's an inclusive definition, an association of producer, seller, distributor, trader, service provider who, by agreement among themselves, limit, control, or attempt to control the production, distribution, sale, or price, or trade in goods or services. This is the definition. Includes an association of producers, seller, distributor, service provider who, by agreement among themselves, limit, control, or attempt to control what the production or the distribution or the price of goods or services or supply of goods or services. अगर कुछ लोग, कुछ प्रोड्यूसर्स आपस में मिलकर जानबूझ के सीमेंट, आपस में जानबूझ के कोई गुड्स या सर्विसेज का दाम कंट्रोल कर रहे हैं, जानबूझ के कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, या जानबूझ के लिमिट कर रहे हैं, चीज को, सप्लाई को रोक रहे हैं, रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, will be considered as cartel. Let's just do one thing. इसको लिखते हैं. डेफिनेशन याद करना बहुत आसान है, लेकिन लय है, इसका भी एक टोन है. आप कोई भी गाना उठा लो, बिना म्यूजिक के लिरिक्स पढ़ के दिखा दो, मैं मान जाऊंगा आपको. कोई भी बॉलीवुड का गाना जो आपने सुना है 50 बार, वो गाना उठाओ, उसका लिरिक्स पढ़ना शुरू कर दो. लेकिन हाँ, लिरिक्स पढ़ते वक्त म्यूजिक नहीं आनी चाहिए. सिर्फ ऐसे एकदम बिना इमोशन के, बिना भावना के पढ़ना है उसको. पढ़ सकते हो क्या आप? नहीं पढ़ पाओगे. पढ़ भी लोगे तो याद नहीं कर, मतलब बिना म्यूजिक के गाने याद नहीं होते. आप गाना क्यों याद कर लेते हो? एक लय बनी हुई रहती है, वो आर्टिस्ट आदमी अपना ट्यूनिंग बराबर करता है उसको, है ना. तो मैं आपको ऐसा बिना 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 म्यूजिक के लिरिक्स बोल दूंगा, आप पहचान नहीं पाओगे कौन से गाने की बात कर रहा हूं मैं. तुम दिन से हो, मैं रात सा, शाम को मिलते हैं, आपको पकड़ में नहीं आएगा गाना. लेकिन अगर मैं प्रॉपर गाना गा के बताऊं, तू दिन सा है मैं रात सा, क्यों ना शामों को मिले, मोह मोह के धागे हो जाएगा फिर. What I'm saying is, please understand, there's a proper tone of how the definition should be read, how it should be, remembered. अगर वो ट्यून आप नहीं बनाओगे, मजा नहीं आएगा पढ़ने में. आ जाओ, इसको लिखते हैं. So what is the definition of cartels? So it includes an association of producers, distributors, includes association of producers, distributors, traders, or service providers. I'm sorry. Who, by agreement among themselves, who, by agreement among themselves, limit, control, or attempt to control. What is the definition of cartel? Cartel includes association of producers, distributors, traders, service providers who, by agreement among themselves, control, limit, control, or attempt to control what? The production,
distribution, production, distribution, price, or trade of goods or services. What are the definition, guys? Come on. Section 2, Clause C, Competition Act 2002, an association of producers, distributors. प्रोड्यूसर्स मतलब एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, प्रोडक्शन करने वाले प्रोड्यूसर लोग आपस में मिले तो, या एसोसिएशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर जो लोग विक्रेता हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो लोग आपस में मिल जाएं, या ट्रेडर्स आपस में मिल जाएं, या सर्विस प्रोवाइडर्स आपस में मिल जाएं, जो जानबूझ के क्या करें, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, चीजों के प्राइसेस, चीजों की ट्रेड में या तो हम उसको जानबूझ के लिमिट कर रहे हैं, या तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, या तो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर द डेफिनेशन. एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और ट्रेडर्स हु by agreement among themselves limit, control or attempt to control क्या, the production, distribution, price or trade of goods or services. This is something that I would like you to very clearly remember. I'm sorry, I must be using the normal color here. Yeah. So what is the definition, guys? Come on. Section 2 provides for cartels, association of producers, distributors, service providers, traders, or any. I'm sorry, let me just repeat again. Section 2, Clause C, Competition Act 2002. The definition includes association of producers, distributors, traders, or service providers who, by agreement among themselves, limit, control, or attempt to control what, the production, distribution, service, or price or trade of goods or services. What happened in the above mentioned case? इतने सारे केसेस की बात की, क्या हुआ था इस केस में? क्लास कम ऑन. क्या ऊपर वाले केस में ऐसा हुआ था कि कुछ सीमेंट प्रोड्यूसर्स ने आपस में अग्रीमेंट करके जानबूझ के लिमिट किया प्रोडक्शन को, कंट्रोल किया प्रोडक्शन को, या अटेम्प्ट किया? उन्होंने तो अटेम्प्ट भी नहीं, अटेम्प्ट किया, उनका तो कंट्रोल ही हो गया ना. उन्होंने तो अटेम्प्ट किया और वो सक्सेसफुल हो गए, तो कंट्रोल किया उन्होंने, जानबूझ के सीमेंट के दाम घटा दिए, तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स उन लोगों ने कंट्रोल कर लिया. मैं यही बोल रहा हूँ क्लास, एनी एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, कुछ प्रोड्यूसर जो प्रोडक्शन करते हैं, वो प्रोडक्शन करने वाले लोग आपस में मिलकर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, या कुछ विक्रेता हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स है जो आपस में मिलकर कुछ गठबंधन करके गड़बड़ कर रहे हैं, या कुछ सर्विस प्रोवाइडर्स है जो मिल गए आपस में और पेल रहे हैं समाज को, पेल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान की पब्लिक को. कार्टेल. ओके, इट्स इंपॉर्टेंट टू नोट, इट्स वेरी 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 क्रिटिकल दैट यू ऑल नोट कि यहां पर इंक्लूसिव डेफिनेशन है, मतलब कार्टेल जो है उसके इंक्लूसिव डेफिनेशन है 2C में, इंक्लूड्स एसोसिएशन ऑफ प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और ट्रेडर्स हु बाय अग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स लिमिट, कंट्रोल और अटेम्प्ट टू कंट्रोल व्हाट, द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेड और प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अब बताओ, क्या सीमेंट कंपनियों ने जो किया उसको कार्टेल बोलना सही होगा? Absolutely. And that is the reason the penalty was levied. That is the reason the penalty followed. The cost of non-complying with the Competition Act is too high in India. It should be high. वैसे तो हम बहुत लेट हैं. हिंदुस्तान ने एक्चुअल में 2009 से हिंदुस्तान में कानून लागू हुआ है. उसके पहले तक तो आप सोचो कितना निचोड़ा होगा सरकार, मतलब हिंदुस्तान में कितना मार पड़ी है कंपटीशन नहीं होने की वजह से, या कंपटीशन लॉ एडिक्वेटली नहीं था उसकी वजह से. So next thing that we must be focusing on, guys, should be the meaning. अब आंसर में सिर्फ डेफिनेशन लिखने से भी नंबर मिलता नहीं है, तो हम तो पूरा आंसर प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं. तो अब व्हाट इज द कॉन्सेप्ट है? अब कार्टेल के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन लिख लेते हैं, मीनिंग लिख देते हैं ना, कॉन्सेप्ट लिख देते हैं थोड़ा सा. So let me just help you in
अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, लेट मी टेक यू टू द नोट्स. आ जाओ, अब नोट्स में आओ. नाउ लेट्स रीड फ्रॉम द नोट्स. The nature of cartel is to raise prices above the competitive levels. See what happens is the very nature of the cartel is such कि यार आमतौर पर जब कंपटीशन होती तो दाम घटते, क्योंकि सारे अगर कंपटीशन में मुझे आगे रहना है, मुझे कंज्यूमर्स को अपने फेवर में करना है, कंज्यूमर्स मैं चाहता हूँ कि लोग मुझसे माल खरीदें, लोग मुझसे सर्विसेज लें, तो मुझे तो कोशिश करनी चाहिए कि मैं कॉस्ट कम से कम और क्वालिटी बेहतरीन से बेहतरीन रखूँ. The nature of cartel is to raise price above the competitive levels, resulting in injury to the consumers, injury to the economy. कहीं ना कहीं the inherent nature of cartel is, cartel बनेगा तो क्या होगा, चीज़ों के दाम जो ऑर्डिनरी लेवल पे अगर कंपटीशन होती तो जो भाव होते उससे भाव ऊपर चला जाएगा, है ना. जो चीज़ 100 रुपये में बिक रही होगी, हम सब कॉम्पिटिटर लोग मिल जाएंगे, हम क्या बोलेंगे, अरे 120 में बेचेंगे यार, 20 टका एक्स्ट्रा. So the very nature of cartel is to increase the price levels above the competitive levels, which results in injury to the consumer, injury to the economy. कंज्यूमर की भी लगेगी, इकोनॉमी की तो लगेगी ही लगेगी. मैं इतना इंट्रोडक्टरी क्लास क्यों लिया हूँ आपका, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि कंपटीशन नहीं होने का दुष्प्रभाव जो है पूरी इकोनॉमी पर बैठता है. For the consumers, cartelization results in higher prices, poor quality and less or no choices for the goods और सर्विसेज. कहीं ना कहीं कंपटीशन नहीं होने की वजह से, कंपटीशन या प्रतिस्पर्धा नहीं होने की वजह से होता क्या है, चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं, क्वालिटी, क्योंकि अब एफिशिएंसीज बढ़ाने के लिए मैं कोशिश करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही प्रॉफिट हो रहा है. तो अगर मुझे नॉर्मली प्रॉफिट हो रहा है तो मैं मेरी एफिशिएंसीज बढ़ाने के लिए, मैं मेरी बिजनेस में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ मेहनत नहीं करूंगा. तो कार्टेल होने की वजह से क्या होगा, दाम बढ़े हुए रहेंगे, चीज़ों की क्वालिटी सुपीरियर नहीं आएगी, पुअर क्वालिटी मिलेगी और लोगों के पास चॉइस भी नहीं रहेगी, है ना. ये भी हो सकता है ना कि 4 मैन्युफैक्चरर्स हैं या 4 प्रोड्यूसर्स हैं, तो वो मिल बांट के ये तो तय कर लेंगे, भैया उत्तर हम संभालेंगे, दक्षिण तुम संभालो, वेस्ट तुम संभालो, ईस्ट तुम संभालो. क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ. मार्केट बांट के धंधा करेंगे, एरिया बांट के धंधा करेंगे, मिल बांट के खाएंगे. उस आप एट द एंड किसकी मरी, कंज्यूमर की. फर्दर, सो दिस इज द वेरी बेसिक स्टफ, है ना. दिस इज अ वेरी बेसिक स्टफ. लेट्स जस्ट राइट दिस अप. इसको लिख देते. मैं शुरू के कुछ कॉन्सेप्ट्स में आपके साथ साथ लिखने की इसलिए कोशिश कर रहा हूँ, भले थोड़ा टाइम जाए, इज बिकॉज आपकी कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहेगी, आपको भी समझ में आएगा कि कोई बहुत बड़ा कोई मिराकल नहीं है, कोई न्यूक्लियर साइंस नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग. व्हाट इज द नेचर ऑफ कार्टेल? The nature of cartel is to increase the prices of goods or services above competitive levels, है ना, which results in injury to the consumer. I'm assuming left में margin होगा, and to the economy as whole. Yes, no? For the consumers, cartelization would result in higher prices. Just a minute, yeah. For the consumer, what would it mean? For the consumers, क्या होगा मेरे भाइयों एग्जैक्टली? कार्टेलाइजेशन की वजह से प्राइजेस बढ़ जाएंगे. In the higher prices, poor quality of goods or services, and less choices, जो कि नहीं होना चाहिए. आज देख यार, आज हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अमेज़ॉन पे प्राइस देखते हैं, फ्लिपकार्ट पे प्राइस देखते हैं, है ना, कितना इजी हो गया है. तो ये जो एग्रीगेटर्स है, ये प्लेटफॉर्म्स की अच्छी बात ये है कि यू गेट द बेस्ट. अभी थैंकफुली डेटा
सस्ता हो जाने की वजह से एज अ CS स्टूडेंट यू विल हैव एक्सेस टू द बेस्ट टीचर। आप इंटरनेट पे जाओ, जितने टीचर्स देखना है देखो, सबका कंटेंट, लेकिन हाँ कंटेंट चेक करो, क्वालिटी चेक करो, जो बेस्ट लगता है सबकी क्वालिटी चेक करो, सबके प्राइजेस चेक करो, ऑथेंटिसिटी चेक करो। ये सारी चीज़ें चेक करके जो बेस्ट लगे आप उसको चुन सकते हो, है ना। तो फिजिकल क्लासेस में आप रेस्ट्रिक्ट हो जाते थे, एज अ स्टूडेंट आप भी रेस्ट्रिक्ट हो जाते थे, एज अ टीचर मैं भी रेस्ट्रिक्ट हो जाता था। मैं भी नागपुर में ही कॉम्पीट कर रहा होता था। वैसे तो मैं कॉम्पीट क्या ही करता, नागपुर में कोई है ही नहीं CS में ज़्यादा, बट फिर भी अब जब पूरा हिंदुस्तान खुल गया है तो मैं भी अपनी एफिशिएंसीज इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा हूँ। एज अ स्टूडेंट आप भी अब पूरे हिंदुस्तान में जितने टीचर्स हैं सबको चेक करोगे, सबका मेथड देखोगे, सबका कंटेंट देखोगे, सबका क्वालिटी देखोगे। आपके पास भी चॉइसेस ज़्यादा हैं। टीचर्स भी, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है तो उधर कंपटीशन की वजह से उनकी एफिशिएंसीज और इंक्रीज होगी, मेरे को और काम करना पड़ेगा और बेहतर बनना पड़ेगा, प्राइजेस घटाने पड़ेंगे। सिंस फिजिकल क्लास नहीं है तो रेंट का पूरा कॉस्ट सेव हो जाता है। द बिकॉज ऑफ द रेंट द कॉस्ट ऑफ EBCL यूज टू बी 8,000 पे भी द मार्जिन आर वेरी फ्लैट, बट बिकॉज ऑफ द इंटरनेट प्रोबेबली हमारा वो पूरा रेंट जो 1.5-2 करोड़ रुपए का रेंट का कॉस्ट आता था वो पूरा कम हो गया। तो एज अ स्टूडेंट भी आपके पास एक्सेस है हिंदुस्तान में, जो टीचर से पढ़ना है उससे पढ़ सकते हो, है ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बॉम्बे में बैठे हो और बॉम्बे में हार्ड एंड फास्ट लाइफ है तो आप नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप नागपुर के टीचर से पढ़ सकते हो, आप दिल्ली के टीचर से पढ़ सकते हो सकता है कोई साउथ इंडिया का कोई बहुत अच्छा टीचर हो सकता है कोई दिल्ली का टीचर बहुत अच्छा हो। तो मार्केट्स ओपन हो गए, आपके पास चॉइसेस हैं। लेकिन अगर सारे कॉम्पिटिटर्स मिल जाए तो आपकी मर जाएगी। बिल्कुल वही होगा यहाँ पर भी। ना लेट्स टॉक अबाउट 2 more concepts. लेट्स टॉक अबाउट, अभी हम इंटरनेशनल कार्टल्स की बात करेंगे तो हम लोग इंपोर्ट कार्टल्स की बात करेंगे, फिर हम एक्सपोर्ट कार्टल्स की बात करेंगे। नाउ सॉरी, सबसे पहले तो इंटरनेशनल कार्टल क्या होता है भाई। इंटरनेशनल कार्टल का मतलब बहुत सिंपल है, जो पार्टीज हैं कार्टल में, मतलब जो लोग मिलकर गठबंधन कर रहे हैं, अगर वो अलग अलग कंट्री में, इट बिकम्स एन इंटरनेशनल कार्टल। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक आई शुड राइट दिस एज अ हेडिंग ऑल्सो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कार्टल अलग अलग से लिखा जाए, इंटरनेशनल कार्टल को मैं अलग से लिखाता हूँ, डोंट वरी। सॉरी, बहुत सिंपल है, आप जबरदस्ती कंफ्यूज मत होइए ऐसा देख के। बहुत सिंपल है, क्या लिखा हुआ है। इंटरनेशनल कार्टल का मतलब क्या होगा। इंटरनेशनल कार्टल का मतलब when not all the enterprises in cartel are based in the same country or where the cartel affects markets of more than one country। for example, सिंपल बात बताता हूँ, मान लो हिंदुस्तान में हम बोल रहे हैं कि हमको बिजली बिजली जो है वो न्यूक्लियर पावर बहुत इफेक्टिव है, न्यूक्लियर बॉम्ब खतरनाक चीज है और न्यूक्लियर उसको रिएक्टर्स वगैरह को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक्चुअल में सबसे सस्ती बिजली जो बनती है वो न्यूक्लियर एनर्जी से बन सकती है। मान लो अभी हिंदुस्तान में लार्सन एंड टूब्रो बोलता है कि भैया हम न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ में आसपास के भी जो देश हैं उनका भी हम बिजली का, इलेक्ट्रिसिटी उनको भी हम सप्लाई कर देंगे हमारी तरफ से। अब नेचुरली अगर मुझे न्यूक्लियर पावर बनाना है तो मुझे चाहिए होंगे यूरेनियम। अभी यूरेनियम तो फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की ही पार्टियां बेचेगी। अब मान लो ऑस्ट्रेलिया में जो यूरेनियम बेचता है, फ्रांस में जो यूरेनियम बेचता है, ये फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों अगर मिल जाए, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की 2 कंपनियां आपस में मिल जाएं और दोनों मिलकर जानबूझ के यूरेनियम भारत के इंपोर्टर को, हिंदुस्तान में लार्सन एंड टूब्रो को 25% 30% महंगा बेचे, तो इससे मेरी तो लगी। लेकिन कार्टल बना इंटरनेशनल कार्टल, क्योंकि जो पार्टियां जिन्होंने मिलकर कार्टल बनाया वो अलग अलग देश की थी, है ना, है ना। बिल्कुल वैसे ही मान लो मैं हूं इंडिगो एयरलाइंस और मुझे खरीदनी है एयरक्राफ्ट। अभी एयरक्राफ्ट बेचता ही कौन है, एयरबस और बोइंग। अभी वर्ल्ड में सबसे बड़ी तो फंडामेंटली 2 ही कंपनियां हैं जो बेचती है। अब ये दोनों मिलकर अगर एयरक्राफ्ट का दाम बढ़ा दें, दोनों मिलकर जानबूझ के आपस में अंदर अंदर से मिल जाए और एयरक्राफ्ट का दाम बढ़ा दें, तो इंडिगो को महंगा पड़ेगा एयरक्राफ्ट, है ना। वैसे तो उनकी ब्रांड अलग है और कंपोनेंट्स अलग है, तो काफ़ी डिफरेंस है दोनों में। लेट्स टेक सिंपल केस, फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम ले लेते हैं।
तो अगर फ्रांस की एक कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी, दोनों मिलकर जानबूझकर प्राइजेस 25-30% बढ़ाकर हिंदुस्तान की कंपनी को दे रहे हैं, तो उन्होंने जानबूझ के प्राइजेस पे कंट्रोल किया, उन्होंने जानबूझ के प्राइजेस बढ़ाए, जिसकी वजह से हिंदुस्तान में न्यूक्लियर पावर महंगा बनेगा, तो इसे इंटरनेशनल कार्टेल बोलते हैं। बहुत सिंपल भाषा का उपयोग करेंगे हम लोग, ठीक है। कोशिश करते हैं कि लैंग्वेज एज इजी एज पॉसिबल रखते हैं। लेट्स ट्राई एंड कीप द लैंग्वेज वेरी 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 सिंपल। सो व्हेन द पार्टीज टू कार्टेल are in more than one country, or it affects competition, or it affects competition in more than one country, one economy, है ना। सो टू अ ग्रेट एक्सटेंट हम लोग ऐसे कार्टल्स को इंटरनेशनल कार्टल बोलते हैं, ठीक है। वी हैव द स्पेस, डोंट वरी, इसको थोड़ा ड्रैग कर लूंगा यार। नाउ व्हाट इज एन इंपोर्ट कार्टल? लेट मी नॉट जस्ट नॉट राइट एंड ट्राई एंड एक्सप्लेन इट यू, दिस विल बी वेरी केयरफुली। अभी इंपोर्ट कार्टल क्या होगा, एक्सपोर्ट कार्टल क्या होगा, और क्या ये हिंदुस्तान में रेगुलेटेड हैं या नहीं। सो हिंदुस्तान की सीसीआई इसे, या हिंदुस्तान का जो कानून है, ये रेगुलेटेड है या नहीं, ये भी एक सवाल है, इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए ना। फंडामेंटली इंपोर्ट कार्टल मतलब बहुत सिंपल है, आप लोग भग से समझ जाओगे। इंपोर्ट कार्टल कंप्राइजेज ऑफ एंटरप्राइजेज दैट गेट टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ इंपोर्ट्स इनटू द कंट्री। मतलब मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं, तो विदेश से मैं मान लो मंगा रहा हूं एलमंड्स। अब अगर बहुत सारे एलमंड मैन्युफैक्चरर्स मिलकर कार्टल बना दे हिंदुस्तान में, जो माल आ रहा है उसके लिए, बिकम्स एन इंपोर्ट कार्टल, ठीक है। सो फंडामेंटली व्हेन आई एम सेइंग इंपोर्ट कार्टल्स, तो मेरे कहने का मतलब जो हिंदुस्तान में इंपोर्ट हो रहा उसके लिए कार्टल बन रहा है, जो आयात है हिंदुस्तान में उसके लिए कार्टल बना है। तो क्या ऐसे हिंदुस्तान का कंपटीशन एक्ट 2002 रेगुलेट करता है? द आंसर इज यस। हिंदुस्तान से जो एक्सपोर्ट हो रहा उसके लिए बनता है एक्सपोर्ट कार्टल, और जो हिंदुस्तान में जो इंपोर्ट होता है उसके लिए क्या बनता है? एक्सपोर्ट कार्टल। अब ये सवाल है कि क्या हिंदुस्तान का कानून इंपोर्ट कार्टल्स को रेगुलेट करता है? इसका जवाब है यस, क्योंकि अगर विदेश की पार्टियां आपस में मिल जाए और हिंदुस्तान में जो माल आ रहा है, मतलब विदेशी एंटिटीज एक्सपोर्ट कर रही हैं और वो लोग कार्टल बना के एक्सपोर्ट कर रही है, तो हिंदुस्तान में कंपटीशन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। इसीलिए कंपटीशन एक्ट में इंपोर्ट कार्टल्स रेगुलेट किए जाते हैं। वेयरएज बहुत फनी लगता है बच्चों को ये हमेशा, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस द किड्स दे यूजुअली लाफ। अब मान लो हिंदुस्तान के कुछ, मान लो अभी मैं सूरत गया था एक बार सेमिनार लेने, तो सूरत में वो कपड़ा और ये विक्रेता बहुत थे, बहुत लोग मिले मेरे को वहाँ पे, कपड़ा 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 सवाल, क्योंकि डाउट्स ही उससे रिलेटेड आ रहे थे। सेशन में तो बहुत कम लोग डाउट पूछे, लेकिन सेशन के बाहर में अंकल अंकल लोग बहुत मिले, वो पूछने लग गए ऐसा करेंगे कैसा करेंगे, ऐसा करें हमारे खिलाफ हो सकता है, 50 टाइप के क्वेश्चन आए। तो मैं बोला देखो, अगर आप कांड कर भी रहे हो तो हिंदुस्तान में तो आपको कॉम्पिटिशन एक्ट हिंदुस्तान का तो लागू नहीं होगा। तो उन्होंने सवाल पूछा कि ऐसा कैसा, हिंदुस्तान का कैसे कॉम्पिटिशन एक्ट क्यों लागू नहीं होगा। मैंने कहा इसलिए क्योंकि हिंदुस्तान की कुछ पार्टियां अगर वो गलत धंधे कर भी रही हैं, अगर वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट करके माल विदेश बेच रही हैं, तो कंपटीशन पर दुष्प्रभाव विदेश में पड़ने वाला है। तो विदेश का जो कंपटीशन एक्ट होगा, वो विदेश के कंपटीशन एक्ट में आप लोग को पकड़ सकते हैं, आपके खिलाफ हिंदुस्तान में भी कार्रवाई हो सकती है। मतलब वो हिंदुस्तानी पार्टी को विदेशी कंपटीशन लॉ रेगुलेटर पेनल्टी लगा सकता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान के कुछ व्यक्ति हैं जो मिलकर कार्टल बनाए हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट रेगुलेटेड इन कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, उसे कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 में रेगुलेट नहीं किया जाता है।
ओके, होप कि आपको थोड़ी थोड़ी बात समझी होगी। ठीक है, अब हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग देखेंगे केस लॉ। तो केस लॉ तो हम देख चुके हैं। तो केस लॉ जैसे मैंने आपको बताया 5 या 6 लाइन में, बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया was an informant which informed about the alleged cartel। तो आप कैसे लिखेंगे? Builders Association of India was filed information before Honorable CCI. The allegations were against the cement companies and cement manufacturers association. The allegations were cement prices were deliberately reduced. The production was deliberately controlled, due to which it resulted in artificial scarcity of the cement, and eventually the prices went up. And eventually, when CCI investigated, the penalty followed. The penalty of 6,700 crore was levied on the cement companies। 4 या 5 लाइन में आप लोग को केस लॉ लिखना है। केस लॉ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। So guys, I think it's time that we discuss how the answer should be written। तो मैं आपको सीधे अब ले चलता हूँ आंसर के स्ट्रक्चर में। आ जाओ। So let me just take a moment here. Now, how exactly the answer has to be written, वो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं और फिर प्रोबेबली हम लोग वी विल रैप अप टुडेज सेशन। हमारा कार्टल वाला जो पोर्शन है वो हम लोग अभी रैप कर देंगे, एंड इवेंचुअली द टॉपिक विच विल बी फॉलोइंग आफ्टर दिस विल बी बिड रिगिंग। सॉरी। नाउ हाउ द आंसर हैज टू बी रिटन इन एग्जामिनेशन। मैं आपको आंसर नहीं लिखवा रहा हूँ, क्योंकि आंसर मैं लिखवाऊंगा ना अभी तो मैं ढोंग करूंगा आपके साथ में कि मैं आपको प्रेजेंट कैसे करना है वो पढ़ा रहा हूँ। सही बात तो ये है कि ये रहती है आपकी एग्जाम में आंसर शीट। दिस प्रोबेबली इफ दिस इज योर आंसर शीट, अगर ये आपकी आंसर शीट है, या अगर आप चाहो तो मैं आपको एक्चुअल में एक न्यू नोट्स खोल के मैं आपको ले जा सकता हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या सो ये सपोज है आपका आंसर शीट। तो आपका आंसर का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए अगर आपको कार्टल्स पूछा गया तो? थोड़ा हंसी आएगी आपको, क्योंकि ऑफ कोर्स वी आर ट्राइंग टू स्कोर मोर और उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले मेरे भाइयों, सेक्शन 3 के बारे में आप सब जानते हैं, उसके बारे में आप बेसिक्स लिखेंगे। मेरे कहने का मतलब सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे इन इंडिया सेक्शन 3 ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 प्रोवाइड्स फॉर एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। Any agreement that causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition is considered as anti-competitive and is prohibited. Further, आप लिखेंगे एक लाइन छोड़ के, मैंने 2 लाइन लिखी है ताकि आप लोग को बहुत क्लियरली दिखे। आप लोग एक लाइन छोड़ के लिखेंगे सेक्शन 3.3 प्रोवाइड्स फॉर हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स। वो मेरे भाइयों, फिर आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट्स आर वेयर द कॉम्पिटिटर्स दे एक्ट इन कोल्यूजन। एंड फिर आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट। टाइप्स में आप बताएंगे एक होता है कार्टेल, एक होता है बिड रिगिंग। फिर आप क्या लिखेंगे? फिर आप लिखेंगे डेफिनेशन ऑफ कार्टेल्स। क्या डेफिनेशन है बोलो? विच सेक्शन? अबे पगलो, नंबर नहीं कटेंगे। Definition of cartel includes any association of producer, distributor, service providers, or traders who, by agreement among themselves, limit, control, or attempt to control what? Production, supply, distribution, or prices of goods or services. फिर आप लिखेंगे कार्टेल का मीनिंग। फिर आप लिखेंगे बेसिक्स, इंटरनेशनल कार्टेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट कार्टेल। फिर क्या लिखेंगे आप? केस लॉ है साले, केस लॉ नहीं है ये, प्रोफाउंड केस लॉ है। हेडिंग डालना 11 सीमेंट कंपनीज were penalized 6,700 crore rupees। एंड द बेसिक समरी। देख भाई, 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। मान लो तुमने आंसर जैसा मैंने तुमको बताया तुमने लिख दिया,
ये मैं पेपर चेकर हूँ, मैं मेरे घर में अभी बैठा हूँगा रात को, पेपर चेकर भी सीएससी होगा नेचुरली, बेचारा वो रात को या शाम को बैठा होगा पेपर चेक करते वक्त, वो देखेगा सवाल क्या है, सवाल है कार्टल्स। जैसे ही वो आपकी ओपनिंग लाइन देखेगा, अरे वाह 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 वाह, सेक्शन 3 का जिक्र हो गया। जैसे ही वो आपकी सेकंड लाइन देखेगा, अरे वाह 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 वाह, हॉरिजॉन्टल अग्रीमेंट का जिक्र हो गया। जैसे ही वो थर्ड पैराग्राफ पढ़ेगा, बोलेगा अरे वाह 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 वाह, डेफिनेशन आ गई। फिर वो आगे जाएगा, अरे वाह कॉन्सेप्ट भी आ गया। फिर वो आपको यहाँ सोच ही रहा होगा कि चल ठीक है, इसको 5 में से 4 दे देता हूँ। फिर वो देखिएगा अबे साले ने केस लॉ भी लिखा है और पेनल्टी वेनल्टी भी लिखा है और केस के थोड़े बहुत ब्रीफ फैक्ट्स भी लिखा है। जय माता दी, लेट्स रॉक। और वो अपनी जायदाद, अपनी ज़मीन एक स्टैम्प पेपर पे उसकी भी साइन करके दे देगा, उसकी आधी ज़मीन जायदाद भी आपके नाम, अगर ऐसा आंसर लिखोगे तो। ओके, जोक्स अपार्ट, बट यस, इफ़ यू विल आस्क कि सर एग्जैक्टली आंसर्स कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है, यही स्टैंडर्ड है। सर स्टैंडर्ड किसने बनाया? मैंने बनाया। मेरे को मालूम है कॉम्पिटिशन लॉ में बेस्ट हूँ, मैं बना रहा हूँ स्टैंडर्ड, यही सही है। मैं जानता हूँ ये इंडस्ट्री में इसके ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। So I hope you have understood, guys. So let's pause here for a bit and eventually we will start with bid rigging. हमारा अगला कॉन्सेप्ट होगा bid rigging का, जहाँ हम फॉस्फेट टैबलेट मैन्युफैक्चरर्स का केस देखेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोर्शन है जिसमें we will talk about that. Okay, thank you guys, you have been a lovely audience. See you soon, bye bye.